Hello friends, welcome to my channel. This is CA Rakhi Agarwal. Today we are going to discuss a topic on Indias, that is basics of Indias, how Indias is introduced in India. That is India's introduction. Now we are going to discuss the overview and brief background of Indias. How Indias came to India. Indias is nothing but a converged form of IFRS. IFRS is an international financial reporting standard issued by International Accounting Standard Board, that is IASB. And we are going to also know the applicability criteria of Ind-AS, conversion from GAAP to Ind-AS and net worth criteria. So Ind-AS क्या है? Ind-AS एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कि कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ IFRS है, जिसको कि IFRS से कन्वर्ट करके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि फॉरेन इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो IFRS है. और ये क्या क्या इसका एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया है वो हम लोग जानेंगे. कैसे ये कन्वर्ट हुआ फ्रॉम गैप टू इंडेस, क्यों कन्वर्ट हुआ वो भी हम लोग जानेंगे. और इसका नेटवर्थ क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग जानेंगे. इसका एप्लीकेबिलिटी क्या है वो भी हम लोग जानेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. क्या था ना, ग्लोबली टू मेथड्स ऑफ एडॉप्शन ऑफ IFRS आर देयर. Some of the countries adopted fully IFRS and some countries adopted the converged form of IFRS. In India, we accepted the converged form of IFRS. We make certain changes in IFRS and then we adopt IFRS. That changes are called carve in or carve out. Or some of the foreign companies adopted 100% IFRS as it is विदाउट एनी चेंज, जो कि IASB ने इशू किया था. 100% वैसे का वैसा उन लोग ने एक्सेप्ट कर लिया इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बट इन इंडिया वी अडॉप्टेड कन्वर्जन फॉर्म ऑफ IFRS. अब हम लोग ने कन्वर्ट करके क्यों अडॉप्ट किया? बिकॉज क्या था कि इन इंडिया हम लोग के कुछ ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे जो कि IFRS में नहीं थे. तो उसको हम लोग ने उस गैप को हटाने के लिए हम लोग ने कन्वर्ज फॉर्म ऑफ कुछ इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज किया, कुछ IFRS का, कुछ IAS का, और सबको मिला के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना, इंडियाज बना. IAS क्या आता है? IAS है वो भी एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका एक सीरीज है जो कि 1 से लेके 41 तक है. और IFRS का सीरीज 100 से लेके स्टार्ट है 116 तक. तो हम लोग दोनों का सीरीज को अडॉप्ट करके एक इंडेक्स बनाए. तो ग्लोबली टू मेथड्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ IFRS आर देयर. एक तो अडॉप्शन रूट है, मीन्स कंपनी अडॉप्टेड 100% IFRS issued by IASB. सर्टन कंट्रीज अडॉप्टेड IFRS विदाउट एनी चेंज, कुछ चेंज नहीं किया, एज इट इज फुल्ली अडॉप्ट कर लिया. और कन्वर्जन मेथड क्या है? वी अडॉप्ट IFRS प्लस माइनस सर्टेन चेंजेस, दैट इज चेंज. वो चेंजेस को क्या बोलते हैं? कार्व इन और कार्व आउट. दिस कार्व इन और कार्व आउट इज व्हाट इज द गैप डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियाज. अब कार्व आउट क्या है? मीन्स द आइटम रिमूव्ड इन इंडेस, जो कि इंडेस से हटा दिया गया है, which are in IFRS and IAS while making Ind-AS. जो कि IFRS और IAS में था लेकिन Ind-AS में नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है, तो वो कार्व आउट है. और कार्विन है जो कि Ind-AS में इंसर्ट किया गया है, जो कि IFRS और IAS में नहीं है. तो कार्विन मीन्स item inserted in Ind-AS which are not in IFRS and IAS while making Ind-AS. Next, why Ind-AS is adopted in India. इंडिया में Ind-AS को अडॉप्ट क्यों किया गया? मोस्ट ऑफ द बिजनेस
are global business. Most of the investors who invest in India, their money, most of the foreign companies are invest their money. They do not understand the financial statement of Indian companies. So, in order to bridge the gap between the investors and in order to make them understand the Indian financial statement, IFRS is introduced. And also most of the Indian CA, though they do not understand the financial statement of foreign companies and they do not know how to prepare IFRS. So lots of debates are there, lots of problem arises. So in order to breeze that, in order to remove that problem and in order to breeze the gap between IFRS and generally accepted accounting principles, Ind AS is introduced or adopted with effects from 2015. So Ind AS is what? Ind AS is a converse version of IFRS. In globalized business, most of the investors who invest in India do not understand generally accepted accounting principle, which is the old version of accounting standards used in India, and they ask Indian company to prepare their financial statement of on IFRS. But Indian CA also do not understand IFRS. See, in order to bridge the gap between IFRS and generally accepted accounting principle, Ind AS is introduced or adopted in India. कब से? With effects from 2015. जनरली क्या होता है कि Ind AS आने वाला था 2011 से, लेकिन वो पोस्टपोन होते होते 2015 में आया। और 2015 में आया तो नेटवर्थ जब हम लोग चेक करेंगे तो 2015 का नेटवर्थ चेक करेंगे और उसके नेक्स्ट ईयर से वो अप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जब बैलेंस शीट बना था इंड एस का, वो कब बना था? वो 2017 से बना था। 31 मार्च 2017 का जो बैलेंस शीट था वो इंड एस में फर्स्ट टाइम बना था। तो Ind AS का एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? Ind AS इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज कंपनी, बैंक एंड एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस सेक्टर। कंपनी को कौन रेगुलेट कर रहा है? कंपनी इज रेगुलेटेड बाय एमसीए, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड वही रोड मैप बना रहा है कंपनी को Ind AS, कंपनी Ind AS कैसे फॉलो करेगी और कैसे मतलब कंपनी फॉलो करेगी। तो एमसीए डील विद कंपनी एंड इट्स रोड मैप फॉर फॉलोइंग Ind AS इज रेगुलेटेड और प्रिपेयर्ड बाय एमसीए। बैंक एंड एनबीएफसी इसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसका रोड मैप कौन बना रहा है? वही आरबीआई बना रहा है। आरबीआई बनाएगा, उसको फॉलो कैसे Ind AS करेगा। और इंश्योरेंस कंपनी के लिए IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो बना रहा है उसका रोड मैप। तो कंपनी का जो एमसीए का जो रोड मैप है वो बैंक नहीं यूज कर सकता और इंश्योरेंस सेक्टर नहीं यूज, उन लोग का अलग अलग रोड मैप है तीनों का फॉर फॉलोइंग Ind AS। अब हम लोग कंपनी के बारे में आएंगे कि एमसीए ने जो रोड मैप बनाया कंपनी के लिए, उसका एप्लीकेबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पहले ऑन द फर्स्ट स्टेज कंपनी Ind AS जो अप्लाई हुआ वो बिग कंपनीज पे हुआ। फेज 1 में जो Ind AS एप्लीकेबल हुआ वो सारी बिग कंपनीज पे हुई जिसकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी। उन कंपनीज पे Ind AS अप्लाई हुआ इन 2015 जो नोटिफिकेशन आया था, और फर्स्ट बैलेंस शीट जो बनी थी वो 2017 में बनी थी, और उसकी कंपैरेटिव फिगर्स हम लोग को 2016 में देना पड़ता था, और उसका ओपनिंग फिगर जो देते थे वो हम लोग 2015 का ओपनिंग फिगर देते थे। तो 3 बैलेंस शीट बनती थी जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा थी। तो एनी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर, उन कंपनीज पे Ind AS अप्लाई हो गया था इन फेज 1। अब कंपनी का मीनिंग क्या होता था कि कौन कौन सी कंपनीज आएंगी इनमें? जो भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, जो भी रजिस्टर्ड रेगुलेटेड इन आरबीआई में, सॉरी एमसीए में रजिस्टर्ड है, इनकॉर्पोरेट है इंडिया में। फॉरेन कंपनीज नहीं आएंगी। जो रजिस्टर्ड है
MCA में वही कंपनीज आएंगी। तो कंपनीज विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया इंक्लूडिंग listed and unlisted having net worth of 500 crores or more and any company who are in process of listing। मतलब क्या है इसका मतलब क्या है कि जो भी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड भी है हो सकती है जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ और मोर। तो लिस्टेड कंपनी होगी उसका नेट वर्थ अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो वो आएंगी फेज 1 में, अगर उससे कम है तब नहीं आएंगी। और अनलिस्टेड कंपनी भी जिसका 500 करोड़ से ज्यादा है तो वो आएंगी, नहीं तो। और जो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग मतलब आप लिस्टिंग के प्रोसेस में होगा, आप लिस्टिंग कराने के अपनी कंपनी के प्रोसेस में हो तो वो अभी कंपनी सब कवर हो जाती है अगर उनका टर्नओवर एक्सीड करता है मोर देन नॉट टर्नओवर, नेट वर्थ एक्सीड करता है मोर देन 500 करोड़। नेट वर्थ क्या है हम लोग आगे अपनी टॉपिक में जानेंगे पहले। और ये जो हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं ना, ये हम लोग नेट वर्थ पे देखते हैं, नॉट ऑन टर्नओवर। बहुत जन निकल जाता है टर्नओवर, ग्रॉस एसेट्स, ये सब पे नहीं, नेट वर्थ पे हम लोग चेक करेंगे 500 करोड़ का क्राइटेरिया। अब लिस्टेड कंपनीज कौन सी है? मीन्स एनी कंपनी whose debt and equity means whose debentures and equity are listed in recognized stock exchange whether in India or outside India। मीन जो भी कंपनीज है जिसकी डेट और इक्विटी जो कि लिस्टेड है इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया, तो वो सब लिस्टेड एंटिटीज है। अब वंस कंपनी अडॉप्टेड इंड एस, मतलब एक बार कंपनी ने अप्लाई कर लिया इंड एस तो उसकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सब पे इंड एस अप्लाई हो जाएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेटवर्थ क्राइटेरिया। मतलब क्या है इसका कि अगर ए कंपनी है, कंपनी ए, उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ है और उस पे इंड एस अप्लाई हो गया है, लेकिन उसकी होल्डिंग कंपनीज की नेट वर्थ 500 करोड़ से कम है या उसकी सब्सिडरीज या एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स की नेट वर्थ 500 करोड़ से कम है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कंपनी ए पे अप्लाई हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेट वर्थ क्राइटेरिया, तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर सब कंपनीज पे अप्लाई हो जाएगा इंड एस। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ उन लोग का नेटवर्थ क्राइटेरिया इज लेस देन 500 करोड़। फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस, net worth is checked on the basis of standalone financial statement and not on the basis of consolidated। सो नेटवर्थ के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? नेटवर्थ के लिए हम लोग स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे, लास्ट ईयर का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेंगे। अगर नेटवर्थ एक्सीड करता है 500 करोड़ से ज्यादा तभी इंड एस अप्लाई होगा। कॉन्सोलिडेटेड सब बैलेंस शीट्स को नहीं रिफर करते हैं चेक करने के लिए नेटवर्थ। Once company adopt Ind AS, it will continue to prepare its financial statement on Ind AS irrespective of net worth criteria for its future period। Means इसका मतलब ये है कि एक बार कंपनी ने Ind AS अडॉप्ट कर लिया तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको फिर कंटिन्यूअसली Ind AS ही फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसका नेटवर्थ कम भी हो जाता है, 500 करोड़ से कम भी हो जाता है, तभी भी उसको Ind AS ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रिपेयर करना, इंड एस से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज नहीं कर सकता, इंड एस से वो आप गैप में नहीं चेंज कर सकता। तो वंस कंपनी हैज अडॉप्टेड इंड एस, इट्स कंटिन्यू टू फॉलो फॉर इट्स फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की? अंडर फेज 1 कंपनी ने फर्स्ट टाइम अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर की 31 मार्च 2017 को। उस टाइम उन कंपनी की फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट बनी, उसका कंपैरेटिव फिगर्स बना 2016 को और उसका ओपनिंग डेट था
2015, दैट इज 1 अप्रैल 2015। इस डेट को हम लोग ट्रांजिशन डेट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन डेट क्या होता है? मीन्स द डेट ऑफ इंसेप्शन, जिस दिन वो डेट था जिस दिन कंपनी ने अडॉप्ट किया इंड एस, और कैसे उसका बैलेंस लुक लाइक ऑन दैट डेट। मीन्स कंपनी ने पहले अपनी प्रिपेयर की थी बैलेंस शीट, जैसे कि कंपनी का नेटवर्थ चेक किया गया 2016 में 500 करोड़ एक्सीड हो गया था, तो इंड एस अप्लाई हो गया। इंड एस अप्लाई हो गया तो नेक्स्ट ईयर कंपनी ने इंड एस फॉलो किया अपना बैलेंस शीट में, लेकिन 16 तक कंपनी ने अपना गैप के हिसाब से ही बैलेंस शीट बनाया, उसी के हिसाब से जमा किया, अपने इनकम टैक्स को MCA में सब जगह जमा किया। तो उसका फिगर जो था बैलेंस शीट का वो फ्रीज हो गया था और वो पब्लिकली पब्लिश हो गया था। तो अब आप इंड एस फॉलो, नेक्स्ट ईयर आप इंड एस लगाओगे तो जितना भी आपको, जैसे 17 का अपने बैलेंस शीट बनाया वो तो इंड एस के हिसाब से बनाया, फेयर वैल्यू में बनाया, लेकिन जो कंपैरेटिव फिगर्स था जो आपने पब्लिश कर दिया था, जो आपने जमा कर दिया था, वो तो कॉस्ट बेसिस पे था, क्योंकि गैप तो कॉस्ट बेसिस पे ही बनता था, अब इंड एस फेयर वैल्यू में बन रहा है। तो जो ये डिफरेंस था उसको, ये डिफरेंस को निकालने के लिए कंपैरेटिव फिगर्स को भी चेंज किया गया। मतलब 17 का फिगर्स तो इंड एस के हिसाब से फेयर वैल्यू में बना, अब 16 का फिगर्स भी आपको फेयर वैल्यू में बनाना पड़ेगा, और फिर उसका ओपनिंग फिगर भी जैसे ट्रांजिशन डेट का, उसका फिगर्स भी आपको फेयर वैल्यू में ही देना पड़ेगा। सब बैलेंस शीट, तीनों बैलेंस शीट आपको फेयर वैल्यू में बनानी पड़ेगी एज पर इंड एस। सो तो हम लोग ओपनिंग ट्रांजिशन डेट में क्या देखते थे कि हम लोग ने फर्स्ट टाइम ये बैलेंस शीट बनाई है, तो उसको इस हिसाब से प्रिपेयर करते थे कि जैसे हम लोग ने फर्स्ट टाइम ये बैलेंस शीट बनाई है और उसका कैसे बैलेंस लुक लाइक एज पर इंड एस, और वो फेयर वैल्यू में कैसे होगी। तो जो भी वो डिफरेंस आता था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड एस का, जो डिफरेंस था वो रिजर्व में एडजस्ट कर दिया जाता था। Comparative balance sheet and opening date balance sheet is also convert in balances in FS from GAAP to Ind AS which is already audited, and मतलब बोलने का कि जो आपने ऑलरेडी ऑडिट कर दिया है, जिसका ऑलरेडी कंपैरेटिव फिगर्स को फ्रीज कर दिया जो कि कॉस्ट बेसिस पे बना हुआ था, अब उसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑन फेयर वैल्यू एज पर इंड एस। अब ये हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ए लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है जिसका नेटवर्थ 520 करोड़ है एज ऑन 31 मार्च 2016। अब इस पे अप्लाई हो गया इंड एस, बिकॉज इंड एस तो आ गया था 2015 से ही। 2016 में अगर उसका नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ 520 करोड़ है, दैट इज मोर देन 500 करोड़, फॉल्स अंडर फेज 1 क्राइटेरिया। अब नेक्स्ट ईयर 2017 में कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी इंड एस से, बिकॉज 16 में तो उन लोगों ने गैप से बनाया है, अब 2017 में इंड एस फॉलो करेगी। तो कंपनी 3 बैलेंस शीट बनाएगी, 31 मार्च 2017 को जो बनाएगी वो इंड एस से बनाएगी, कंपैरेटिव फिगर्स को भी इंड एस से बनाएगी, ओपनिंग फिगर जो कि ट्रांजिशन डेट है उसको भी इंड एस में बनाएगी, क्योंकि पहले तो कॉस्ट बेसिस पे बनता था, अब फेयर वैल्यू में बनेगा। तो 3 बैलेंस शीट बनाएंगी। लेकिन जब एक बार इंड एस, हम लोग फर्स्ट टाइम जब इंड एस को अप्लाई करते हैं तब हम लोग 3 बैलेंस शीट जमा करते हैं, 3 बैलेंस शीट बनता है। उसके बाद जब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट ईयर अगर बनाएंगे तो हम लोग 2 बैलेंस शीट ही देंगे, 2 ही बैलेंस शीट जमा करेंगे, मतलब 2 ही ईयर्स का फिगर जाता है, एक कंपैरेटिव और एक जो जिस ईयर का है उसका। नाउ तो अगर इंड एस फॉलो हुआ तो कंपनी का 3 बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट 3 साल का बनेगा, जैसे कि यहाँ पीएल, लेकिन क्योंकि पीएल में कोई इफेक्ट नहीं आता। बैलेंस शीट क्या होता है कि पुराने बैलेंस शीट हिस्टोरिक बेसिस पे आप कवर करते हो, पीएल को तो आप हिस्टोरिक बेसिस पे
आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, आप तो करेंट पीरियड का ही खर्चा बुक कर रहे हो, तो पीएल जो आएगा आपका 2 साल का ही बनेगा, लेकिन बैलेंस शीट जो बनेगा आपका 3 साल का बनेगा फर्स्ट टाइम। तो पीएल का जो है जो उसको आप 2 साल का ही बनाओगे और बैलेंस शीट 3 साल का बनाओगे। कैश फ्लो भी जो बनेगा वो 2 साल का बनेगा। सॉकी जो कि स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है वो 3 साल का बनेगा। अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंट रहेगा, सेम एंड कंसिस्टेंट। रिको बनेगा बैलेंस शीट और पीएल का। अब रिको क्या होता है कि आपका एडजस्टमेंट जो होता है कि आपका ओपनिंग फिगर ये था, उसमें आपने इतना एडजस्ट किया, आपका मतलब कॉस्ट बेसिस पे आपका ओपनिंग इतना था, फिर आपने उसमें एडजस्ट किया तो आपका क्लोजिंग फिगर ये आया, फिर आपने उसमें कुछ एडजस्ट किया तो रिको जो बनेगा यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2015 से 16 में आने में एक रिकंसिलिएशन बनेगा और 16 से 17 में जाने में एक रिकंसिलिएशन, मतलब यहाँ दो जगह 2 साल का रिको बनेगा। 17 में तो हम लोग ऑलरेडी इंडेक्स फॉलो करें तो इसका कोई रिको नहीं बनेगा। इंडेक्स फॉलो करें नेक्स्ट ईयर के लिए इसका तो कोई रिको नहीं बनेगा, बिकॉज ये तो इंडेक्स फॉलो हो रहा ही है। और यहाँ पे पीएल में क्या होता है कि हम लोग करंट पीरियड का, जैसे कि इस पीरियड का खर्चा 15 का बैलेंस शीट, तो इसमें से 2016 का ही रिको बनेगा। इसका तो करंट पीरियड का खर्चा है, इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है तो ये इसका सिर्फ 2016 का ही रिको बनता है। तो रिकंसिलिएशन ऑफ बैलेंस शीट 2015 का बनेगा, 16 का, 17 का नहीं बनेगा। और पीएल बनेगा 2016 का ओनली, ना तो 15 का बनेगा ना 17 का बनेगा। अब हम जानेंगे कि नेटवर्थ का कंप्यूटेशन क्या है। नेटवर्थ तो जनरली नेटवर्थ का डेफिनेशन तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ बोला नहीं गया है, लेकिन एमसीए ने नेटवर्थ का डेफिनेशन डिफाइन किया है एज पर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 257 के तहत। तो नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ का कंप्यूटेशन क्या है। नेटवर्थ वही है, शेयर कैपिटल प्लस टोटल रिजर्व एंड सरप्लस माइनस रिवैल्यूएशन रिजर्व माइनस एमलगमेशन रिजर्व माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ये सारा कंप्यूट करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगा। मतलब उसमें शेयर कैपिटल में आप रिजर्व सरप्लस ऐड कर दीजिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व, एमलगमेशन रिजर्व, मिसलेनियस एक्सपेंस लेस कर दीजिए, आपका नेटवर्थ आ जाएगा। अब एमलगमेशन रिजर्व क्या है। एमलगमेशन रिजर्व है जो हम लोग कोई भी कंपनी एमलगमेट होती है तो जब ट्रांसफर सारे एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है तो जो रिजर्व क्रिएट होता है at the time of amalgamation और for at the time of acquiring any company, जो रिजर्व क्रिएट होता है वो एमलगमेशन रिजर्व होता है। और इन डिटेल वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे जब हम लोग एमलगमेशन पढ़ेंगे। अब नेटवर्थ हम लोग कैसे, नेटवर्थ जो कंप्यूट होता है ना वो लास्ट डे ऑफ द ईयर होता है, नॉट ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग जब चेक करेंगे नेटवर्थ क्राइटेरिया तो कंपनी के लास्ट डे में, मतलब कंपनी की लास्ट 31 मार्च को कंप्यूट करेंगे, नॉट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। हम लोग चेक करेंगे कि नेटवर्थ क्या है कंपनी का, इंडेक्स अप्लाई करने के लिए हम लोग लास्ट डे ऑफ द ईयर में ही चेक करेंगे कि कंपनी पे इंडेक्स अप्लाई हो रहा है कि नहीं, नेटवर्थ एक्सीड हो रहा है कि नहीं 500 करोड़ से ज़्यादा। स्टैंड अलोन बैलेंस शीट जो कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा है, कि पहले भी अभी मैंने बोला कि स्टैंड अलोन बेसिस पे हम लोग नेटवर्थ को चेक करेंगे, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और जो वंस नेटवर्थ क्राइटेरिया मीन्स इंडेक्स अप्लाई हो जाएगा इन द इमीडिएट नेक्स्ट ईयर, जैसे कि 2016 में अगर नेटवर्थ क्राइटेरिया हम लोग एंड ऑफ द ईयर में चेक कर रहे हैं और वो फुलफिल कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ फेज 1, सो नेक्स्ट ईयर अप्लाई हो जाएगा इमीडिएटली, इंडेक्स विल अप्लाई। सो अंडर फेज 1 में आ जाएगा। नेक्स्ट इज फेज 2। अब तो हम लोग ने फेज 1 जान लिया, अब फेज 2 कब आया। ये जो फेज 2 आया
फेज 1 तो फॉर बिग कंपनीज के लिए था, फेज 2 जो आया जो मीडियोकर कंपनीज के लिए था। मीडियोकर कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होंगी बट 500 करोड़ से कम होंगी, उनके लिए अब एप्लीकेबिलिटी आ गया इंड एस अंडर फेज 2, जो कि मीडियोकर कंपनीज के लिए था, जिसका नेटवर्थ, एनी कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 250 करोड़ बट लेस देन 500 करोड़, 500 करोड़ से कम होंगी। 500 करोड़ से क्यों कम होंगी? क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंपनी जो 500 करोड़ और 500 करोड़ से ज्यादा थी वो तो ऑलरेडी इंड एस अप्लाई कर चुकी है अंडर फेज 1, तो उन लोग को तो कवर करने का कोई मतलब नहीं है। अब 250 करोड़ से ज्यादा की और 500 करोड़ से कम की पे फेज 2 अप्लाई कर दिया एमसीए ने, तो उनको भी ले आया इंडेक्स के अंदर में, तो वो सारी कंपनीज आ गई। फिर एनी लिस्टेड कंपनी जो कि फेज 1 में कवर्ड नहीं थी, वो सारी मतलब जो भी लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनीज को ले आया। मतलब जो भी कंपनी लिस्टेड है उसमें नेटवर्क क्राइटेरिया को हमको नहीं देखना है, हमको बस ये देखना है कि कंपनी लिस्टेड है कि नहीं। लिस्टेड है इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, उसका इक्विटी डिवेंचर जो भी लिस्टेड है वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो सब कवर हो जाती है इन फेज 2। तो अगर उसका नेटवर्थ अगर सपोज 250 करोड़ से कम है या उसका नेटवर्थ करोड़ इवन नेगेटिव भी है, तब भी लिस्टेड कंपनी फेज 2 में आ जाती है और उसको इंडेक्स फॉलो करना पड़ता है। वंस इंडेक्स अप्लाइज टू कंपनीज, एक बार इंडेक्स अप्लाई हो गया कंपनी पे तो उसका होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ज्वाइंट वेंचर सब कवर हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम ये फेज 2 कब अप्लाई हुआ? फर्स्ट टाइम फेज 2 ने अपना बैलेंस शीट कब बनाया? 31 मार्च 2018 को फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट अपना बनाया। उसका कंपैरेटिव फिगर गया 31 मार्च 2017 को और ओपनिंग गया फिगर 1 अप्रैल 2016 को। सो फेज 2 में अपना बैलेंस शीट फर्स्ट जमा किया 31 मार्च 2018 को। ये था फेज 2 का। और जो भी क्राइटेरियाज सेम रेप्लिका ऑफ फेज 1, मतलब फेज 2 का जो भी क्राइटेरिया रेप्लिका ऑफ फेज 1, बस वहाँ पे हम लोग को नेटवर्थ चेक करना पड़ेगा कि 250 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए और 500 करोड़ से कम होना चाहिए। ये तो कंपनीज की हो गई। अब आई बैंक एंड एनबीएफसीज की बारी। अब बैंक एंड एनबीएफसीज पे भी गवर्नमेंट ने बोला कि इंडेक्स लगाना पड़ेगा, जो कि कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक्स पे क्या हुआ कि बैंक्स का डिफर हो गया इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी और बोल दिया गया कि जब तक कि कोई फर्दर नोटिफिकेशन नहीं है बैंक्स पे अप्लाई नहीं होगा इंडेक्स। तो बट एनबीएफसीज पे लगा दिया गया। एनबीएफसीज पे भी फेज 1 फेज 2 के बेसिस पे ही लगाया गया। पहले फेज 1 में वही नेटवर्थ चेक किया गया, 500 करोड़ और मोर लगेगा, मोर होगा तब फेज 1 में लग जाएगा और फेज 2 में 250 करोड़ और मोर। तो 500 करोड़ तो एनबीएफसीज पे कब लगा? फर्स्ट बैलेंस शीट कब बनी उसकी फर्स्ट बैलेंस शीट विद इफेक्ट्स फ्रॉम 31/3/2019 में उसने अपनी फर्स्ट बैलेंस शीट बनाई। अगर उसका नेटवर्थ क्राइटेरिया 500 करोड़ से ज़्यादा है तो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा, तो उसने फर्स्ट बैलेंस शीट 2019 में बनाई। उसकी कंपैरेटिव फिगर्स गई टू 31 मार्च 2018 को और ओपनिंग फिगर गई 1 अप्रैल 2017 को। फेज 2 में भी यही 250 करोड़ और मोर अगर होगा तो लेस देन 500 करोड़ होगा तो इसकी फर्स्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 20 को गई, उसकी कंपैरेटिव फिगर 31 मार्च 2019 को गई और 18 को 1 अप्रैल 2000 की ओपनिंग फिगर और ट्रांजिशन डेट था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एनबीएफसीज एंड बैंक। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एनबीएफसीज और बैंक को रोड मैप जो है कौन देता है? आरबीआई देता है। तो हैज टू फॉलो आरबीआई रोड मैप इरेस्पेक्टिव ऑफ एमसीए रोड मैप। उसको एमसीए का रोड मैप नहीं फॉलो करना है, उसको सिर्फ आरबीआई का ही रोड मैप फॉलो करना है एनबीएफसीज और बैंक्स को।
लेकिन एक पॉइंट है कि अगर होल्डिंग कंपनी, सपोज होल्डिंग कंपनी एनबीएफसी कंपनी है और उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी नॉन एनबीएफसी कंपनी है कि जनरल कंपनीज है, तब क्या होगा, होल्डिंग कंपनी अपनी आरबीआई की रोड मैप फॉलो करेगी और सब्सिडरी कंपनी अपनी एमसीए की रोड मैप करेगी, फॉलो करेगी। तब ना होल्डिंग कंपनी ये नहीं बोल सकती कि मैंने आरबीआई के हिसाब से अपना बैलेंस शीट बनाया, आप भी बनाओ, नहीं, ये अप्लाई नहीं होगा। होल्डिंग कंपनी पे आरबीआई का रोड मैप फॉलो होगा और वो अपनी इंडेक्स बनाएंगी एज पर आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से, और सब्सिडरी एमसीए के गाइडलाइन के हिसाब से ही अपनी बैलेंस शीट बनाएंगी और उस तरह से अपनी इंडेक्स की बैलेंस शीट बनाएंगी। इंश्योरेंस कंपनी कौन रेगुलेट करता है, वही आईआरडीए, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि उन्होंने भी अपना इंडेक्स का जो एप्लीकेबिलिटी है उसको डिफर कर दिया है कि जब तक फर्दर नोटिफिकेशन नहीं आए तो हमारे ऊपर इंडेक्स नहीं लगेगा। तो उन पे भी अभी तक तो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक इंडेक्स फॉलो नहीं करता है, बाकी सब कंपनीज फॉलो करती है अगर उनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है, और जो भी लिस्टेड कंपनीज है। कौन कौन सी कंपनीज पे इंडेक्स अप्लाई नहीं होता, अगर पार्टनरशिप फर्म है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, ब्रांच ऑफिस है। ब्रांच ऑफिस क्या होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है फॉरेन कंपनीज को, विच रिप्रेजेंट ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी, उन पे भी इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा। बैंक्स पे नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं होगा, ट्रस्ट पे नहीं होगा, सोसाइटी पे नहीं होगा, लिस्टेड इन एसएमई एक्सचेंज जो कि स्मॉल मीडियम एक्सचेंज कंपनीज है उन पे नहीं होगा, एसएमईज में जो लिस्टेड है, और प्रोप्राइटरशिप फर्म में इंडेक्स फॉलो नहीं होगा, मतलब इंडेक्स अप्लाई नहीं होगा। अभी तक कितना इंडेक्स आ गया है, 31 मार्च 2020 में दे आर 39 इंडेक्स। सेक्शन 8 कंपनीज जो है उस पर भी इंडेक्स अप्लाई होता है। और वन मोर थिंग वी नीड टू से दैट अगर सब्सिडरी ऑफ ए फॉरेन कंपनी फॉलो इंडेक्स इन इंडिया, अगर होल्डिंग कंपनी आईएफआरएस फॉलो कर रही है तो जरूरी नहीं है उसकी जो कंपनी है जो कि इंडिया में है उसकी सब्सिडरी कंपनी वो भी आईएफआरएस फॉलो करे, वो अपनी बैलेंस शीट इंडेक्स में ही बनाएगी। और होल्डिंग कंपनी को भी जरूरी नहीं है कि वो अपनी बैलेंस शीट इंडेक्स में बनाए, जो कि फॉरेन में है वो अपनी कंपनी आईएफआरएस में बनाएगी। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please, if you like my discussion, please like, subscribe and share my channel. Thank you.